Hello everyone. Here I am discussing final term examination of Ankur School. So instructions are given to us. The question paper contains two parts A and B. Part A consists of two sections, first and second. Section 1 has 16 questions of 1 mark each and section 2 has 4 case study based questions. And we have to attempt any 4 out of 5 subparts. Part B contains very short answer type questions of 2 marks each, short answer type questions of 3 marks each, and long answer type questions of 5 marks each. So let's start the paper. Question number 1. Is 0 a rational number? Can you write it in P by Q form where P and Q are integers and Q not equal to 0? तो क्या 0 एक rational number है? बिल्कुल है. 0 is a rational number, so answer is yes. And इसे P by Q फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख देते हैं 0/1. It is of the form P by Q where P and Q both are integers and Q not equal to 0. Question number 2. Rationalize the denominator. तो डिनोमिनेटर है √7. इसे रैशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √7. क्या आ जाएगा? √7/7. दिस इज द आंसर. Question number 3. Check whether -2 and 2 are zeros of the polynomial x plus 2. तो zeros of the polynomial मतलब polynomial को क्या बना दें? 0. तो पुट करके देख लेते हैं कि 0 बन रहा है कि नहीं polynomial. x की जगह रखा -2. So -2 plus 2. This is equal to 0. So -2 is a zero of the polynomial. इसके बाद है 2. क्या आएगा? 2 plus 2. This is equal to 4, which is not equal to 0. So 2 is not a zero of the polynomial x plus 2. Question number 4. Factorize 2x square plus 7x plus 3. तो factorization करनी है 2x square plus 7x plus 3 की. कैसे हो सकती है factorization? Using splitting the middle term. तो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं. कैसे स्प्लिट करना है कि प्रोडक्ट शुड बी 6x स्क्वायर एंड सम और डिफरेंस शुड बी 7x. तो क्या बन सकते हैं फैक्टर्स? 2x स्क्वायर प्लस 7x को लिख देते हैं 6x प्लस x, क्योंकि प्रोडक्ट आ रहा है 6x स्क्वायर एंड सम इज 7x. सो 6x प्लस x प्लस 3. इन दोनों टर्म से 2x कॉमन, अंदर क्या बचा? x प्लस 3. इधर से 1 कॉमन, अंदर बचा x प्लस 3. पूरे से x प्लस 3 कॉमन लिया, क्या बच गया अंदर? यहाँ से 2x प्लस 1. सो दीज आर द फैक्टर्स. क्वेश्चन नंबर 5. इन विच क्वाड्रेंट डू द पॉइंट -5, -9 लाइज? सो x कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव. कौन सा क्वाड्रेंट होगा? थर्ड क्वाड्रेंट. क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री. सो कॉम्प्लीमेंट मान लिया इसका x डिग्रीज है, राइट, एंड कॉम्प्लीमेंट x है तो x प्लस 30 डिग्री कितना होगा? 90 डिग्रीज. तो कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा? 60 डिग्रीज. सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 डिग्रीज 60 degree. This is the answer. Question number 7. What is the name of each part of the plane formed by two lines? So when two mutually perpendicular lines intersect, the plane is divided into 4 parts and the name of each part is quadrants. Right? Question number 8. Write x is equal to -5 as an equation in 2 variables. तो 2 variables में लिखना है, मतलब एक वेरिएबल तो है x प्लस 0 into y.
-5 को इधर दूसरी साइड ले आए तो +5, दिस इज इक्वल टू 0. सो इट्स एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. क्वेश्चन नंबर 9, कंस्ट्रक्ट एंगल ऑफ 60 डिग्री. सो 60 डिग्री का एंगल हम सबको बनाना आता है. सबसे पहले एक रे बनाई, कंपास यहाँ पे रखी, खोली और एक आर्क बना दी. उतनी ही खुली रखी, कंपास यहाँ पे रखी, एक और आर्क बना दी. दिस इज द एंगल ऑफ 60 डिग्रीज. Question number 10. If the radius of a cylinder is doubled and height remains the same, what will be its volume? So volume of cylinder. क्या होती है? Pi r square h, where r is radius and h is height of cylinder. Now radius is doubled. अगर radius को double कर दिया, then new volume कितनी होगी? पाई आर की जगह 2r, रेडियस डबल कर दिया, r स्क्वायर, एंड हाइट रिमेन्स द सेम, मीन्स हाइट इज h ओनली. दिस इज द न्यू वॉल्यूम. तो दिस इज एक्चुअली 4 पाई आर स्क्वायर h, और पाई आर स्क्वायर h तो पुरानी वॉल्यूम थी. सो वॉल्यूम बिकम 4 टाइम्स. राइट. क्वेश्चन नंबर 11. Find the radius of a sphere whose surface area is 154 centimeter square. So surface area of sphere. Is given to be 154 centimeter square, and we know surface area of sphere क्या होता है? 4 pi r square, where r is radius of the sphere. This is equal to 154. तो यहाँ से रेडियस r की वैल्यू निकाल लेते हैं. क्या आएगा? 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154. दिस इज एक्चुअली r स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7/4. तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं. रेडियस कितना आ जाएगा? 7/2, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर. दिस इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 12. फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा. तो मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं. असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे छोटा है 14, तो 1 2 3 4. देन कम्स 17, नेक्स्ट इज 18, फिर है 25 एंड देन 28. राइट. असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया. अब देखो कितनी टर्म्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अगर नंबर ऑफ टर्म्स 9 है तो मीडियन क्या होगा? 9 + 1/2th टर्म मीन्स 5th टर्म. 5th टर्म इज द मीडियन. 5th टर्म कौन सी है? 17. सो मीडियन इज 17. दिस इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 13. अ die is thrown. What is the probability of getting a multiple of 3 on the upper face? So जब die को थ्रो किया, then क्या क्या आ सकता है अपर फेस पे? 1 2 3 4 5 6. राइट. probability of getting multiple of 3. multiple of 3 कौन कौन से हैं भाई? 3 and 6. so probability of getting multiple of 3 क्या होगी? 2/6, that is 1/3. This is the answer. Question number 14. Find the value of k if x is equal to 3 and y is equal to 2 is a solution of the equation 3x plus 4y is equal to k. So अगर ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है तो इसे सेटिस्फाई करेंगे.
तो सेटिस्फाई करा देते हैं. x की जगह रखा 3 एंड y की जगह 2. क्या आ गया? 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू k. So this is 9 plus 8 is equal to k. So k is equal to 17. This is the answer. Question number 15. What is the probability of an impossible event? Impossible event कभी अक्कर नहीं हो रहा. So probability क्या होगी? भाई जब इवेंट कभी अक्कर ही नहीं हो रहा तो probability is 0. Question number 16. A transversal L intersects two lines M and N such that a pair of alternate angles are equal. So, दो lines हैं M and N. And a transversal L intersect two lines. This is the transversal L. कैसे intersect कर रही है? Such that pair of alternate angles are equal. Alternate angles means this is equal to this. Then what can you say about lines M and N? So M and N कैसी lines होंगी? भाई जब pair of alternate angles equal हैं, then lines must be parallel. So M is parallel to N. Question number 17. Aman is making a kite for his sister. This is his diagram. The kite is 48 centimeter wide. While doing so, few questions came in his mind. Give answer to his questions by looking the figure given alongside and use the data accordingly. So this is actually a kite, right? First question is, what is the measurement of the angle between the two bamboo sticks pasted at the center? So ये दो bamboo sticks लगाई हैं AC and BD. इनके बीच में एंगल बताना कितना होगा. एंड हमें पता है that kite के diagonals हैं ये एक्चुअली में, and kite के diagonals are perpendicular to each other, right? So the angle is 90 degree. Means correct answer is option D. Next question. Write the shape of upper and lower portions of the kite, that is ABD and CBD. So ABD and CBD ये एक्चुअली में कैसी ट्राइंगल्स हैं भाई? साइड्स इक्वल, दो साइड्स इक्वल तो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं. सो दीज आर आइसोसेलेस ट्राइंगल्स. Next question. What is the area of the kite so formed if lengths of the bamboo sticks are 8 centimeter and 20 centimeter? So kite का area find करना and length of bamboo sticks दी हुई हैं 8 centimeter and 20 centimeter. तो मान लिया कि ये 8 है and ये 20 है, राइट? एरिया ऑफ काइट कैसे फाइंड करें? एक्चुअली में एरिया ऑफ इन दोनों ट्राइंगल्स का फाइंड कर लेते हैं. ठीक है, सबसे पहले इस वाली ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस. बेस कितना है? 8 इंटू हाइट. हाइट हमें पता है ये 90 डिग्री, मान लिया ये h1 प्लस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल कितना होगा? हाफ इंटू बेस इज अगेन 8 एंड हाइट हमें नहीं पता, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लिया h2. अब अगर ध्यान से देखें, दिस इज हाफ इंटू 8 इंटू h1 प्लस h2 एंड h1 प्लस h2 हमें पता है कितना है? 20. तो एरिया कितना आ गया? 80 सेंटीमीटर स्क्वायर. मीन्स करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड is equal to the sum of square of other two sides, then this theorem is called as. भाई सबको पता है ये कौन सी थ्योरम है? पाइथागोरस थ्योरम. सो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी.
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ AC? AC लेंथ हमें फाइंड करनी है, राइट? अब उसके लिए क्या क्या पता है भाई? पता है AB एंड AD आर 26 सेंटीमीटर ईच एंड BC एंड CD आर 40 सेंटीमीटर ईच. और क्या पता है? दैट काइट इज 48 सेंटीमीटर वाइड, मतलब BD इज 48 सेंटीमीटर. और हमें ये भी पता है दैट AC बाइसेक्ट्स BD, राइट? मतलब ये भी 24 सेंटीमीटर और ये भी 24 सेंटीमीटर, तब ये 48 सेंटीमीटर हुआ. हमें निकालना है AC. तो एक बार इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाते हैं, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं P, और AP लेंथ निकाल लेते हैं, और इस ट्राइंगल में भी पाइथागोरस लगाते हैं और PC लेंथ निकाल लेते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ABP by Pythagoras theorem 26 square is equal to 24 square plus AP square. ठीक है, तो यहाँ से AP square कितना आ जाएगा? 676 minus 576. So AP square is 100, means AP आ गई 10 सेंटीमीटर, राइट? ऐसे ही इन ट्राइंगल BCP, BC का स्क्वायर मीन्स 40 स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर. तो यहाँ से PC स्क्वायर आएगा 1024. सो PC इज 32 सेंटीमीटर. अब AP एंड PC आ गए 10 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर, तो AC कितना हो गया? 42 सेंटीमीटर. AC is actually 10 centimeter plus 32 centimeter, that is 42 centimeter. मतलब correct answer is option B. Question number 18. Students of a school are standing in rows and columns in their playground for drill practice in the morning. P, Q, R and S are the positions of 4 students as shown in the graph. तो P, Q, R, S ये 4 students हैं. Consider A as origin. A को हमने origin मान लिया है. What are the coordinates of P? P के coordinates, अगर A origin है तो this is let x axis and this is y axis. ठीक है, P के coordinates लिखने हैं. भाई x coordinate कितना है? 3 and y coordinate is 5. So coordinates are 3, 5. Next question, what are the coordinates of Q? Q ये रहा. क्या है coordinates? X coordinate is 7 and y coordinate is 9. So correct answer is 7, 9, means option C. Next question, what are the coordinates of R? R के coordinates ये रहा R. X coordinate is 11 and y coordinate is 5, means correct answer is option A, 11, 5. Next question, write the shape of quadrilateral formed by joining P to Q, Q to R, R to S and S to P. So P to Q, Q to R, R to S and S to P. हमें देखना है कि ये कौन सी फिगर बन रही है. ठीक है, अगर इसे ध्यान से देखें, क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स हैं ये, राइट?
एंड इन डायगोनल्स को अगर ध्यान से देखें, ये लेंथ कितनी है, ये है 3 और ये है 7, सो 7 माइनस 3 दैट इज 4. ये लेंथ कितनी है, दिस इज 11 एंड दिस इज 7. 11 माइनस 7 दैट इज ऑल्सो 4. ये लेंथ कितनी है, दिस इज 9 एंड दिस इज 5. 9 माइनस 5 दिस इज 4. एंड ये लेंथ कितनी है, 5 माइनस 1 दैट इज 4. सो इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स. तो डेफिनेटली ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, एक्चुअली मेक स्क्वायर, राइट. ट्राइंगल ऑब्वियसली नहीं है, रेक्टेंगल भी नहीं है, सर्कल भी नहीं है, इट्स अ स्क्वायर, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए. ए एक्चुअली में हमने क्या कंसीडर किया था, ओरिजिन, एंड ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स आर 0,0. मतलब आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 19, in our day-to-day life we come across a number of solid. You can be familiar with some of the solids like cube, cuboid, cone, cylinder and sphere. Similarly, in the adjoining figure you find some solid objects. Based on this figure, answer the questions given below. So first question is, name the figure which is prominently viewed by you. So ये एक्चुअली में एक सिलेंड्रिकल शेप है, ये सिलेंड्रिकल शेप है. एक्चुअली में यहाँ पे ज़्यादातर क्या है, सिलेंड्रिकल शेप. सो द फिगर प्रोमिनेंटली व्यूड इज सिलेंडर, मीन्स ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉर्मूला टू मेजर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट इज 2πRh प्लस surface area of base as well as top means 2πr square. तो 2πr कॉमन अंदर बच रहा है, h plus r स्क्वायर यूनिट्स. सो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉर्मूला टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है, पाई आर स्क्वायर h, वेयर r इज रेडियस एंड h इज हाइट ऑफ सिलेंडर in cubic units, means correct answer is option A. Next question, what is the volume of cylinder having radius 7 meter and height 10 meter. अभी अभी देखा फॉर्मूला क्या होता है, पाई means 22/7, r square means 7 into 7 into में height that is 10, right. कैलकुलेट किया, दिस इज 1540 मीटर क्यूब, मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विद रेडियस 3.5 मीटर एंड हाइट 15 मीटर. टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πr इंटू आर प्लस एच. सो 2πr into r plus h means 15 plus 3.5 that is 18.5, right. कैलकुलेट किया आ जाएगा 407 मीटर स्क्वायर, मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 20, द डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बिलो shows the number of runs taken by batsmen in one-day cricket matches in one session. So these are the number of runs and these are number of batsmen scoring these runs. First question is, how many batsmen scored more than 300 runs in one-day cricket matches in one season? So more than 300 ये रहे, 300 से ज़्यादा means 400, 500 और 600. वो कितने बैट्समैन हैं, इतने means 12 plus 8 plus 5 that is 25, means आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बैट्समैन स्कोर्ड लेस देन 300 runs in one-day cricket matches in one season?
लेस देन 300 मीन्स आइदर 200 और 100. वो कितने हैं? दिस 40 प्लस 15 दैट इज 55. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Write the empirical relationship among the three measures of central tendency. तो relationship हमें कैसे याद होता है? That mod is equal to 3 median minus 2 mean. Right? And this is option A. Next question. Estimate the mean number of runs taken by batsman. तो मीन नंबर ऑफ रन्स निकालने हैं. उसके लिए हमें नंबर ऑफ रन्स पता है, इसको माना एक्स आई, एंड नंबर ऑफ बैट्समैन, उसकी फ्रीक्वेंसी भी पता है, सो दिस इज एफ आई. मीन निकालने के लिए वी नीड टू फाइंड एफ आई इंटू एक्स आई. तो वो फाइंड करते हैं. एफ आई इंटू एक्स आई 100 इंटू 40, 200 इंटू 15 3000, 300 into 20, 400 into 12, 500 into 8, and 600 into 5. Right? Now we need to find mean, and mean क्या होगा? Summation of fi xi upon summation fi. तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई निकाल लेते हैं. इनको ऐड किया, क्या आ गया? 24800. एंड समेशन एफ आई मीन्स इन सबका सम, फ्रीक्वेंसीज का सम इज 100. तो मीन क्या हो गया? 24800 अपॉन 100 दैट इज 248. राइट? सो द मीन इज 248, पर हमें बोला है एस्टिमेट करना है मीन. ठीक है, तो एस्टिमेट कर लेते हैं. 248 के नियरेस्ट कौन सा है? 200. मीन्स आंसर इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी बैट्समैन स्कोर्ड मोर देन 500 रन्स इन वनडे क्रिकेट मैचेस इन वन सीजन? तो मोर देन 500, मोर देन 500 मीन्स 600, और वो कितने हैं? 5 बैट्समैन. मतलब आंसर इज ऑप्शन A. So this was the question. Question number 21. Show that 0.2353535 and so on can be expressed in the form P upon Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0. So we have to show that we can express it in the form P upon Q. So let's do it. Let this number be x. X is equal to 0.2353535 and so on. Right? अब इसे P by Q फॉर्म में लिखने के लिए ये जो रिपीटिंग ब्लॉक्स हैं इनको हटाना पड़ेगा. ठीक है, अब वो कैसे हटाएं? सबसे पहले तो रिपीटिंग ब्लॉक्स को अलग कर लेते हैं. उसके लिए व्हाट आई डू, आई मल्टीप्लाई इट विथ 10. सो 10x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10 से मल्टीप्लाई करने पे 2.353535 and so on. Again, repeating blocks अलग करने के लिए I multiply it with 100. So क्या आ जाएगा? इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो 1000x is equal to 235.353535 and so on. अब अगर इन दोनों को माइनस करें, मीन्स इसको इसमें से माइनस कर दें, तो ये रिपीटिंग ब्लॉक हट जाएंगे. राइट? तो कर देते हैं माइनस. सब्ट्रैक्टिंग दिस फ्रॉम दिस क्या आ जाएगा? 990x इज इक्वल टू 233. ठीक है, तो x इज 233 अपॉन 990. दिस इज ऑफ द फॉर्म p by q, where p and q both are integers and q not equal to 0. Question number 22. Factorize yq plus 125. So अगर इसे ध्यान से देखें, इसे लिख सकते हैं y का क्यूब प्लस 125 को भी लिख सकते हैं 5 का क्यूब
ठीक है, अब इससे कौन सी आइडेंटिटी याद आती है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब. ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी. ठीक है, तो आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं. दिस विल बिकम a plus b means y plus 5 into a square means y square plus b square means 5 का square minus a into b means y into 5. ठीक है, क्या आ गया? y plus 5 into y square plus 25 minus 5y. These are the factors. Question number 23. Find the total surface area of a cone if its slant height is 21 meter and diameter of its base is 24 meter. तो total surface area of cone निकालना है. total surface area of cone क्या होता है? pi r into r plus l. ठीक है, where r is radius and l is slant height. slant height दी हुई है 21 मीटर एंड रेडियस के लिए डायमीटर दिया हुआ है 24 मीटर. तो रेडियस कितना होगा? 24/2 दैट इज 12 मीटर. राइट, तो टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं. कितना होगा? पाई मीन्स 22/7, रेडियस इज 12 प्लस आर प्लस एल मीन्स 12 प्लस 21. दिस इज 22/7 into 12 into 33. So when you calculate this, this is 1244.57 meter square. This is the total surface area of cone. Question number 24. On which axis the following points lie? तो सबसे पहला पॉइंट है 0,4. भाई x कोऑर्डिनेट 0 मतलब y एक्सिस पे लाई कर रहा है. नेक्स्ट इज -5,0. y कोऑर्डिनेट 0 मीन्स x एक्सिस पे लाई कर रहा है. 5,0 अगेन y कोऑर्डिनेट 0 मीन्स x एक्सिस पे लाई कर रहा है. नेक्स्ट इज 0,-3. x कोऑर्डिनेट 0 मीन्स y एक्सिस पे लाई कर रहा है. क्वेश्चन नंबर 25. फाइंड a इन द गिवन फिगर. a निकालना है एंड अगर ध्यान से देखें a is actually equal to b. Why? These are vertically opposite angles. Right, so this is also b and this is a straight line. So this and this b and 2b are forming a linear pair. So b plus 2b is equal to 180 degree. They are forming a linear pair. Right, so यहाँ से क्या आ गया? 3b is equal to 180 degree and b is equal to 60 degree. And if b is 60 degree, a is also 60 degree. This is the answer. Question number 26. Find the area of a triangle, two sides of which are 8 centimeter and 11 centimeter, and perimeter is 32 centimeter. So area find करना है, उसके लिए Heron's formula अप्लाई करना पड़ेगा. Heron's formula के लिए हमें तीनों साइड्स चाहिए. तो दो साइड्स पता है 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर. थर्ड साइड मान लेते हैं x एंड 8 + 11 + x इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर. राइट, सो x कितना आ गया? 32 minus 19. ठीक है, सो दिस इज 13 सेंटीमीटर. ठीक है, तो तीनों साइड्स आ गए हमारे पास 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर. और सेमी पेरीमीटर s कितना होगा? 32/2 दैट इज 16 सेंटीमीटर. So let's find the area. Area is positive square root of semi perimeter, that is 16, into 16 minus 8, that is 8, into 16 minus 11, that is 5, and 16 minus 13, that is 3.
राइट तो 16 इज एक्चुअली 4 का स्क्वायर. 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 4. 4 इज एक्चुअली 2 का स्क्वायर. अंदर क्या बच जा रहा है 2 इंटू 5 इंटू 3. सो दिस इज 8 रूट 30 centimeter square. This is the area of triangle. Question number 27. If x is equal to 2 plus root 3, find x plus 1 upon x. तो x की वैल्यू हमें दी हुई है 2 plus root 3. 1 upon x कितना होगा? 1 upon x is 1 upon 2 plus root 3. इसे रैशनलाइज करते हैं. रैशनलाइजेशन के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 माइनस रूट 3. So this is actually 2 minus root 3 upon a plus b into a minus b means a square minus b square. So a square is 2 square, that is 4, minus root 3 square, that is 3. This is actually 1. So 1 upon x is 2 minus root 3. Right? हमें निकालना है x plus 1 upon x. x कितना है 2 plus root 3 and 1 upon x is 2 minus root 3. So this is actually root 3 से root 3 cancel 4. This is the answer. Question number 28. The following number of goals were scored by a team in a series of 10 matches. Find the mean, median and mode of the scores. तो सबसे पहले mean find करते हैं. Mean is sum of observations upon number of observations. तो sum of observations किया सबसे पहले 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 0 plus 1 plus 3 plus 3 plus 4 plus 3 upon number of observations. These are 10 matches, so number of observations are 10. This is 28 upon 10, that is 2.8. ठीक है, तो ये आ गया मीन. नेक्स्ट इज मीडियन. मीडियन के लिए सबसे पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं. असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा 0, देन 1, देन 2, देन 3 आ रहा है 1 2 3 4 टाइम्स. then 4 and then 5. राइट सो मीडियन क्या होगा? देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 10, सो मीडियन विल बी 10 by 2th term plus 10 by 2th plus first term upon 2. So 10 by 2th term is 5th term plus 6th term upon 2. 5th term is 1 2 3 4 3 and 6th term is also 3. So median is actually 3. ठीक है. नेक्स्ट इज मॉड. मॉड क्या होता है? मोस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी, और मोस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी क्या है? 3. सो मॉड इज एक्चुअली 3. क्वेश्चन नंबर 29. The following is the distribution of weights in kg of 50 persons. So weights दिए हुए हैं, number of persons दिए हुए हैं. Represent the given information with the help of a histogram. So इस डेटा का हिस्टोग्राम हमें बनाना है. तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले बनाई एक्सेस. दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं हम वेट्स, and y axis पे number of persons. स्केल डिसाइड करते हैं. इंटरवल्स आर कंटिन्यूस एंड 50 to 55, 55 to 60 ऐसे हैं. तो यहाँ पे 0 है, तो सबसे पहले बनाना पड़ेगा किंक टू कंप्रेस द एक्सेस. दिस इज
50, 55, 60, 65, 70, 75 एंड 80। इससे आगे जाने की ज़रूरत हमें नहीं है। वाई एक्सिस पे स्केल डिसाइड करते हैं। 5 से स्टार्ट होना है, 12 तक जाना है, तो ले लेते हैं 2 के स्केल। दिस इज 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। तो सबसे पहले 50 to 55 के बीच में 12 नंबर ऑफ पीपल। सो नेक्स्ट 55 to 60 के बीच में 10, दिस इज 10। 60 to 65 के बीच में 9, 9 का आएगा 8 और 10 के बीच में, दिस इज 9। नेक्स्ट इज 7, 7 6 और 8 के बीच में। नेक्स्ट इज 5, this is 5, and next is again 7. So this is the histogram and scale क्या है, x axis पे we are taking 1 unit as 5 kgs and y axis पे we are taking 1 unit as 2 people, right? So this is the required histogram. Question number 30. BE and CF are two equal altitude of triangle ABC. ABC एक triangle है and BE and CF are two equal altitudes of triangle. So BE एक altitude है and CF भी एक altitude है, and these altitudes are equal. Using RHS congruence rule, prove that the triangle ABC is isosceles. तो ट्राइंगल को आइसोसेलेस प्रूव करना है, मतलब अगर हम दो साइड्स को इक्वल प्रूव कर दें तो ट्राइंगल आइसोसेलेस हो जाएगी, या फिर हम किन्हीं दो एंगल्स को इक्वल प्रूव कर देते हैं। तो देखते हैं, RHS कॉन्ग्रुएंसी का यूज करना है। तो RHS कॉन्ग्रुएंसी के लिए राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करनी पड़ेगी एंड वी कैन सी अ राइट एंगल ट्राइंगल। एक तो ये रही और दूसरी ये रही, राइट। सो इन ट्राइंगल BEC and triangle CFB, BE is equal to CF, ये गिवन है। BC एक कॉमन साइड है एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है। Each is 90 degree, right? So by right angle, this is the hypotenuse and side. By RHS congruency rule, triangle BEC is congruent to triangle CFB. अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल, मतलब एंगल B एंगल C के इक्वल। एंगल B एंगल C के इक्वल मीन्स इनके ऑपोजिट साइड्स AB is equal to AC. Since AB is equal to AC, therefore triangle ABC is isosceles triangle. So this was the proof. Question number 31. Hamid has built a water tank with lid for his house, with each outer edge 1.5 meter long. He gets the outer surface of the tank excluding the base
covered with square tiles of side 25 centimeter. Find how much he would spend for the tiles if the cost of the tiles is rupees 360 per dozen. So एक क्यूबिकल वाटर टैंक है, इसको उसे टाइल्स से कवर करना है, एक्सक्लूडिंग द बेस. बेस पे तो ऑब्वियसली टाइल्स नहीं लगा रहा है, सिर्फ बाहर लगा रहा है, बाकी के 5 सरफेसेस पे स्क्वायर टाइल से कवर कर रहा है, समथिंग लाइक दिस, राइट. हमें बताना है कॉस्ट ऑफ टाइल्स, और दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ टाइल्स क्या है, ₹60 पर डजन. तो सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि वो कितनी टाइल्स यूज कर रहा है. ठीक है, अब टाइल्स कहाँ यूज हो रही हैं, टू कवर द सरफेस एरिया ऑफ टैंक. तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि कितना सरफेस एरिया कवर हो रहा है. सो सरफेस एरिया कवर्ड विद टाइल्स कितना होगा भाई. क्यूबिकल टैंक है और उसके 5 फेसेस कवर होने हैं, बेस कवर नहीं होना. ठीक है, तो क्या होगा, 5 इंटू साइड का स्क्वायर. ठीक है, और साइड दी हुई है, आउटर एज कितनी है, 1.5 मीटर. 1.5 मीटर मीन्स 150 सेंटीमीटर. ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली 5 इंटू 150 इंटू 150. दिस एरिया विल बी कवर्ड विद टाइल्स. ठीक है, अब कवर कैसे हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर ईच. ठीक है, तो टाइल का एरिया कितना है, दैट विल बी 25 इंटू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज ऑल्सो इन सेंटीमीटर स्क्वायर. ये एक टाइल का एरिया है, तो नंबर ऑफ टाइल्स कितनी होंगी, दैट विल बी 5 इंटू 150 इंटू 150 divided by 25 इंटू 25, right? This is actually 180. So 180 tiles are needed. And हमें निकालनी है कॉस्ट. कॉस्ट के लिए कॉस्ट क्या है, 360 पर डजन मीन्स 12 टाइल्स की कॉस्ट कितनी है, ₹360. तो 180 टाइल्स की कितनी होगी, दैट विल बी 360 divided by 12 multiplied by 180, and that is ₹5,400. So this is the cost of the tiles and hence is our answer. Question number 32. If two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the line segment joining the point of intersection to the center makes equal angles with the chord. So एक circle है, circle with center O. Two equal chords intersect within the circle. So दो equal chords बनाई. So this is AB and this is CD, intersecting within the circle at point say P. Proof क्या करना है, line joining the point of intersection to the center. Point of intersection क्या है, P, center O. इनको join किया. This line makes equal angle with the chords. chords के साथ कौन सा एंगल बन रहा है, ये और ये, right? So we need to prove that angle OPA is equal to angle OPD. This is our target. अब कैसे प्रूव करें, इक्वल कॉर्ड्स दी हुई हैं, तो इक्वल कॉर्ड्स के कौन कौन से रिजल्ट हमने पढ़े हुए हैं,
एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट पड़ा हुआ है दैट इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर. तो ये रहा सेंटर, इससे कॉर्ड्स का डिस्टेंस देख लेते हैं. दिस इज perpendicular distance OM and this is perpendicular distance ON. So we do a construction, drop perpendicular from center on the chords. Right? Now we shall prove that this angle is equal to this angle. उसके लिए हम congruency का यूज़ कर लेते हैं. अगर हम इन दोनों triangles को congruent prove कर दें तो ये दोनों angles भी equal हो जाएंगे. So let's prove. In triangle OMP and triangle ONP, क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स हैं तो इक्विडिस्टेंट होंगी, मतलब OM इज इक्वल टू ON. राइट? ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री. सो एंगल OMP इज इक्वल टू एंगल ONP, ईच इज 90 डिग्री, एंड OP दोनों में कॉमन है. सो OP इज इक्वल टू OP, कॉमन साइड. So by right angle hypotenuse side by RHS rule, triangle OMP is congruent to triangle ONP. और दोनों triangles congruent तो उनके corresponding parts भी equal, मतलब angle OPM is equal to angle OPN by CPCT. So hence is the proof. Question number 33. Construct an angle of 45 degree at the initial point of a given ray and justify the construction. So एक initial ray given है. Say this is the ray OA. इस पर 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है. तो 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना आता है. सबसे पहले क्या करेंगे, O को सेंटर माना, कंपास खोली और एक आर्क लगा दी, फिर उतनी ही खुली रखी, यहाँ पे रख के आर्क लगा दी. दिस इज 60 डिग्री. उसके बाद दिस इज 120 डिग्री. 60 और 120 के बीच में 90 डिग्री. तो इस एंगल का बाइसेक्टर. दिस इज 90 डिग्री. अब 90 का हाफ, मतलब 90 का एंगल बाइसेक्टर इज 45. So this is 45 degrees. राइट? एंड जस्टिफाइड है कंस्ट्रक्शन. क्यों? क्योंकि हमने पहले 90 डिग्री का एंगल बनाया और उसका एंगल बाइसेक्टर मींस 90 डिग्री का हाफ इज 45 डिग्री ओनली. फिर उसका एंगल बाइसेक्टर बनाया विच इज 45 डिग्रीज. क्वेश्चन नंबर 34. इन अ गिवन फिगर A, B, C and D are 4 points on a circle. So ये 4 points दिए हुए हैं. AC and BD intersect at point E such that angle BEC is equal to 130 degree. ये angle 130 degree दिया हुआ है. And angle ECD is 20 degrees. Find angle BAC. BAC ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है. ठीक है? अब ये एंगल अगर देखें कौन सी आर्क बना रही है,
BC आर्क बना रही है, राइट। अब BC आर्क क्या कोई और एंगल भी बना रही है? बिल्कुल बना रही है। इट इज मेकिंग एंगल BDC एज वेल। So angle BAC and angle BDC are in same segment, मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, तो हम BDC निकाल लेते हैं, BAC अपने आप आ जाएगा। अब BDC कैसे निकालें? गिवन इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। BDC इस ट्राइंगल में आ रहा है, राइट, इन ट्राइंगल CDE। अब अगर इस ट्राइंगल में ध्यान से देखें, दिस एंगल इज 20 डिग्री और ये क्या है? इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल, राइट। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। एंगल CEB एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, मीन्स दिस इज इक्वल टू एंगल ECD प्लस एंगल CDE, राइट। सो CEB है हमारे पास 120 डिग्री इज इक्वल टू 130 डिग्रीज इज इक्वल टू 20 डिग्री प्लस ये हमें नहीं पता, इसको मान लिया क्वेश्चन मार्क। सो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 110 डिग्री, मतलब एंगल BDC इज 110 डिग्रीज, राइट। तो एंगल BAC भी कितना होगा? 110 degrees. Why? Because they are angles in same segment. Question number 35. Plot the following points on a Cartesian plane and then determine whether they are collinear or not. So points हमें दिए हुए हैं, हमें Cartesian plane पे बनाने हैं, तो उसके लिए ग्राफ ऑलरेडी है हमारे पास। सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, उसके लिए सबसे पहले बनाई एक्सिस। दिस इज द एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ठीक है। ये क्या हो गया? ओरिजिन। 1 2 3 4 5 6, नेगेटिव साइड पे -1 -2 -3 -4 -5 -6। वाई एक्सिस पे भी 1 2 3 4 5 6, नेगेटिव साइड पे -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है A 1, -1, तो x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट -1, ये रहा पॉइंट, दिस इज A। फिर है B 5, 3, तो x एक्सिस पे 5 एंड y एक्सिस पे 3, दिस इज पॉइंट B। A कितना था? 1, -1। नेक्स्ट इज C -3, -5, तो -3, -5, ये रहा C। नेक्स्ट इज D 0, -2, तो x एक्सिस पे तो चलना ही नहीं है, y एक्सिस पे -2, ये रहा। नेक्स्ट इज E 2, 0, तो 2, 0, ये रहा। सो पॉइंट्स हमने प्लॉट कर दिए हैं। अब हमें चेक करना है कि कोलिनियर है कि नहीं। भाई कोलिनियर है मतलब एक लाइन पे लाई करेंगे। अगर स्केल की हेल्प से हम लाइन ड्रॉ करें, इन दोनों को ज्वाइन करें और प्रोड्यूस करें, तो ये सारे पॉइंट्स भी इसी लाइन पे लाई कर रहे हैं, राइट। सो द पॉइंट्स आर कोलिनियर। Question number 36.
find the cost of laying grass in a triangular field of sides 50 meter, 65 meter and 65 meter at the rate of rupees 7 per meter square. So कॉस्ट ऑफ लेइंग द ग्रास निकालनी है, रेट दिया हुआ है ₹7 पर मीटर स्क्वायर. तो देख लेते हैं कि कितने मीटर स्क्वायर पे ग्रास लगानी है. वो क्या होगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर फील्ड. ठीक है, तो हमारा टारगेट है पहले एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड निकालना. वो इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि साइड्स हमें ऑलरेडी गिवन है. ठीक है, साइड्स गिवन है तो एरिया कैसे निकालेंगे, यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला. तो हेरॉन्स फॉर्मूला के लिए सबसे पहले निकाला सेमी पेरीमीटर एस. दैट विल बी 50 meter plus 65 meter plus 65 meter upon 2, right? So this is 180 upon 2, that is 90. ठीक है, सेमी पेरीमीटर आ गया. नाउ एरिया, एरिया इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ सेमी पेरीमीटर 90 into 90 minus 50, that is 40 into 90 minus 65, that is 25 and 90 minus 65, that is 25. ऑल राइट, तो एरिया कैलकुलेट करा. देखो 9 को लिख लेते हैं 9 इंटू 10. वाई, क्योंकि 9 परफेक्ट स्क्वायर है. एंड 40 को लिखा 4 इंटू 10 और 25 और 25 ऑलरेडी बन रहा है. सो स्क्वायर रूट से बाहर क्या आ जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 इंटू 10 और 10 एक बार इंटू 4 का स्क्वायर रूट 2 इंटू 25 और 25 एक बार. ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली मल्टीप्लाई करा तो 1500 मीटर स्क्वायर. दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड. ठीक है, अब कॉस्ट निकालनी है. कॉस्ट के लिए हमें पता है दैट 1 मीटर स्क्वायर में ग्रास ले करने के लिए वी नीड ₹7. तो हमें 1500 मीटर स्क्वायर में ग्रास ले करनी है. तो कितने पैसे लगेंगे, 1500 इंटू 7 रुपीज़, राइट. सो क्या आ गया ये, ₹10500. तो 10,500 rupees are required. This is the answer. So this was the last question. Our paper is done here.